द मीडिया, सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, और आज वो ऑफिशियली तिपरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा विजय कुमार रांखोल। यहाँ में हमारे ईएम हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, एमडीसी श्री रविंद्र देबबर्मा, रुनिल देबबर्मा, हंसु कुमार त्रिपुरा, एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देबबर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबबर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइन तिपरा मोथा। We welcome him to the family of तिपरा मोथा। वेलकम भाई कहाम लामसोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, विल बी फ्री हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। हम भाई ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে রায়মা ভ্যালি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম, এবং আমি আইপিএফটি 2014 থেকে, এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার আইপিএফটিতে, এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি এক আঞ্চলিক দল আইপিএফটির সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে, আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছেন এসে তিপ্রাসা, আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে যে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজার কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে তিপরা মোথার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই, আইপিএফটি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপ্রাসার উন্নয়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে ময়দানে নেমেছে আমরা সবাই। আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতেই পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপ্রাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপ্রাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আমিও এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজা হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে আমাদের রায়মা ভ্যালি নেতৃত্ব রয়েছেন, আর কমসে কম 100 জনের লিডার এসেছেন আজকে, এবং আগামী দিনে আসবে, এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিএফটি নয়। আমি শুধু রায়মা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরা ভ্যালি থেকেও, পর্ব থেকেও, এমপি থেকেও
অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিপি মহারাজার দলে সামিল হবেন এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন এবং বিভিন্ন কিছু এমএলএরাও রয়েছেন। তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করব। হাতে হাত মিলে আমরা মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। আমরা সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন। বর্তমান এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছেন। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরাকে মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো আমি মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিপি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপ্রাসাদে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিপি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিপি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এসে ত্রিপুরাসা আমি দফায় সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হয়েছে 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। আপনারা জানেন আমাদের এনসি দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি, সিনিয়র লোক, সেই তো ওখানে অসুস্থ। যদি একজন ফাউন্ডার অফ আইপিপি এবং যে গার্জেন তাই নিয়ে যদি অসুস্থ, তো ওই গার্জেন ওই গড কীভাবে চলবে ना। मैंने बोला था, मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ। मैं उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है। ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उस मुद्दा को हम लोग कभी भी रेस नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। देखिए हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है। पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरासा कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। मेन मुद्दा अभी महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोग को, इसलिए हम लोग अभी त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है, उस घर में अभी कमज़ोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो एक घर चलने पर फाइनेंशियल बेनिफिट के सिवा कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का जरूरत नहीं। स्पेशली और कोई हाँ पक्षले नहीं, इसका क्वेश्चन का सवाल मैं दूंगा। जब कोई टिप्रासा मोथा में ज्वाइन करता है तो कंडीशन लेके ज्वाइन नहीं करता है। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से, यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हंस कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं त्रिपुरा मोथा में आऊँगा। धनंजय आया है, ही इज़ नॉट सेड दैट मुझे टिकट दो मैं त्रिपुरा मोथा में आऊँगा। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट इज हियर, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंसो, नो ऋषिकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके त्रिपुरा मोथा में आया। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द दफा और इसी के लिए आया है। वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद आते हैं, इलेक्शन के 1 महीने पहले आते हैं। वो मेरा चुनाव को लड़ना ही है,
तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप चुनेंगे? आप भी लड़ लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको मैं टिकट दे दूंगा। ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूं, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा मोथा में नहीं है लेकिन अपने एरिया में जीरो है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली बैठकर, प्रेसिडेंट, आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, एक बात बिफोर, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना समय लिया है। आई नो यू ऑल आल्सो हैव अदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टू अटेंड टू। ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बहुत मलिशियस प्रोपेगेंडा है कि हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हैं। सबसे पहले लेट मी assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि ADC के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है। आज आप 10,323 टीचर्स के बारे जब हम लोग फाइट करते हैं तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज हैं, बंगालीज हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चा बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है। हम मणिपुरी, बिष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैतेई से बात कर रहे हैं। एससी कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज गिवन पेट्रनेज टू द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस। हमने, कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 युद्ध में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया। तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं लिया है। लेकिन आज दरकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें। लेकिन मैं इसका भी आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आउटसाइड एडीसी एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम। जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है। रोड अगर हमारे वहां में नहीं है तो अगरतला में भी, अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड्स नहीं है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कॉकबोरॉक शुड बी स्पोकन इन रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा। तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है। हमेशा हमारा डिमांड को एक कम्युनल कलर दिया जाता है। मीडिया, you are a very responsible media. Media has suffered also. Media has not suffered any less. मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है त्रिपुरा में, एटलीस्ट रीजनल पॉलिटिक्स बदल चुका है। हम सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो तापस दे, मैं बचपन से जानता हूं, हमारे इतने अच्छे बंगाली फ्रेंड्स हैं, बंगाली वेल विशर्स है, लखी नाग। मैं खुद कांग्रेस में प्रेसिडेंट था, हमने सबके साथ काम किया। तो ये लाइन की तिपरासा जब अपना अधिकार मांगता है तो वो किसी का अधिकार छीनने के बारे में बात कर रहा है, ये बात नहीं है। मैंने दूसरा बात आई वांटेड टू पुट, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। ये आज मुस्लिम को टारगेट करके
हिंदू का पेट नहीं भर रहा है, आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है। तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए, अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए। हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय कोलोय अंबासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ, जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस। जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन और डेवलपमेंट तो होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टी, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास है, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ है? हम अपना डिमांड रख रहे पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। आप देखिए एडीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासास एंड नॉन तिपरासास, बंगालीज एंड तिपरासास। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ है। इससे पहले छोटे छोटे, जब आईपीएफटी ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, एडीसी में वायलेंस, रोड ब्लॉकेज होता था, हमने तो नहीं कराया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए। वी आर नॉट लाइक दैट। वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड, we understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given, but we also deserve some justice, we also deserve some right. And मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि नेगोशिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज, ये पूजा भी खत्म हुआ है। आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूं कि प्लीज इसको भी आप सामने रखिए। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको तिपरासा बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस बेलाई नहाम्बाई, धन्यवाद, थैंक यू।